एग्जाम दे रहे Okay, good morning, everyone. Yesterday I had given you some homework. Can you solve those sums? Question number 2 का दिया था and 3 का एक दिया था. Only 3 sums I had given to you. Okay, answer आए सबको अच्छे से? Yes, ma'am. सबको आया ना? Okay, ठीक है, very good. Okay. So now we will do some more sums and then sums हो गए तो I will start with reference electrode. ठीक है? These are the questions from textbook. Question number 4, page number 118, 4 का 4. ठीक है? Write down. Ready, everyone? Please be sit with your notebook, logbooks. Write down. Equilibrium constant of the reaction. Equilibrium constant of the reaction. Write down this reaction. Cu. Oh, sorry, this is Cu plus. 2 Cu plus and this 2 plus aqueous plus Cu solid is the equilibrium constant of the reaction 2 times Cu plus. ये 2 नहीं है, सिर्फ Cu है. Cu plus gives you Cu2 plus and Cu solid is 1.2 into 10 raised to 6. 1.2 into 10 raised to 6. Okay. Full stop. What is the standard potential of the cell? What is the standard potential of the cell in which reaction takes place? What is the standard potential of the cell in which reaction takes place? Okay. Now see this. Divesh, please आपका mic बंद करो. Okay. Now see how to solve this. First of all, they have asked us what is E naught of the cell. Formula क्या था? 0.0592 upon n log to the base 10 k. ठीक है? K is given. We have to calculate here n. अब ये रिएक्शन देखो कैसे लिखा है 2Cu plus. मतलब ये रिएक्शन ऐसा है Cu plus plus Cu plus will give you Cu2 plus and Cu solid. Am I right? 2 बार है ना ऐसा. ठीक है. अब देखो Cu एक बार ऑक्सीडाइज हो गया. This is your oxidation and एक बार वो खुद reduce हो गया. So it is called as reduction. Clear? इतना part समझा? 2 times Cu plus is there. So I have written 2 times. One time it is getting reduced. One time it is getting oxidized. ठीक है. अभी मैं अगर reduction reaction लिखती हूँ
रिडक्शन की जैसे किधर हुआ है, प्लस से सॉलिड को हुआ है ना, तो Cu प्लस विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Cu सॉलिड, बराबर है ये, से यस और नो, करेक्ट। Cu प्लस से Cu सॉलिड का रिडक्शन हो गया, मतलब इट विल एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ना। देन आफ्टर दैट व्हाट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है, Cu प्लस टू Cu2 प्लस, मतलब Cu प्लस gets converted into Cu2 plus with 1 electron only. Clear? So what is the number of electrons involved here? It is 1. N is equals to 1. इतना समझा? Number of electrons निकालने के लिए मुझे reaction लिखना पड़ा. Is it clear? Now we can Yes, ma'am. substitute this into the formula. ठीक है? So E naught of the cell is equals to 0.0592 upon 1 log to the base 10. K कितना दिया हुआ है? 1.2 into 10 raised to 6. तो पहले ये सॉल्व करेंगे. तो इट इज 0.0. प्लीज ज्वाइन होने के बाद अपने अपने माइक्स बंद करिए. शिवम प्लीज म्यूट योरसेल्फ. 0.0592 ये हो जाएगा log of 1.2 plus log of 10 raised to 6. समझा? Now you can solve 0.0592. log of 1.2 कितना है बताओ, 12 का log, log of 12 1318. log ना 1318 plus इसमें 10 रुको raised रुको to एक मिनट. 6. हाँ ये कुछ तो गलत है. 0792. 0792 सॉरी 079. 12 का log देखा ना तुम लोगों ने? हाँ मैम. ठीक है चलो, अभी 0.0592 प्लस 6.0792 समझा? अब इन दोनों को सॉरी मल्टीप्लिकेशन था ये, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. यू कैन डू इट बाय लॉग एंड एंटी लॉग. 592 into 6.0792 into 10 raised to 1 2 3 4 minus 4. You can apply log of 592 plus log of 6.0792 into 10 raised to minus 4. आया सम समझ में सबको? ये रिएक्शन अलग था इसलिए मैंने ये सम लिया, because they have given over here 2Cu plus और दिया हुआ है रिएक्शन, तो 2 टाइम्स इसको ओपन करना है. 1 टाइम इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, अनदर टाइम इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो रिड्यूस होने के लिए +1 से 0 की तरफ गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, और +1 से +2 की तरफ गया तभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन था. तो n इज इक्वल्स टू 1. क्लियर? Yes, कॉपी करो इतना फटाफट से, सॉल्व करो और आंसर बोलो. ये ऊपर का हो गया लिख के? no ma'am. ओके ओके, राइट इट, सॉल्व इट एंड टेल मी योर आंसर्स. हो जाएगा तो जो बोलो ऑक्सीडेशन कैमरा में. और रिडक्शन में वो इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा ना? हाँ सेम होएगा, देखो ना इधर सेम है. अब इसको अगर फुल रिएक्शन लिखोगे तो कैंसिल होके अपना आंसर देखो, Cu प्लस Cu प्लस Cu सॉलिड Cu2 प्लस, ये आंसर आ गया. समझा? तो n इज इक्वल्स टू 1 है. n के लिए अपने को रिएक्शन लिखना पड़ा. हाँ ओके.
करेक्ट आंसर है कशिश, परफेक्ट. वोल्ट, यूनिट विल बी वोल्ट. परफेक्ट आंसर दिवेश. अभी तुम लोग एक्सपर्ट हो गए न्यूमेरिकल्स में. Yes, Pragati, correct answer. Yes, what about others? आया आंसर सबका? What others are doing? चलो फटाफट करो बच्चों. Answer is 0.3598 volt. What everybody? Done, yes or no? At least reply. बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? तीन चार लोग ही आंसर करते हैं हमेशा. हाँ ठीक है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. बताओ ना तो हो गया तो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन उसमें का 5. Calculate the EMF of the cell. Calculate the EMF of the cell. Cell is this one, Zn2 plus 0.2 molar, H plus 1.6 molar, H2 गैस पर. यहाँ पे इसका प्रेशर दिया है देखो 1.8 atm NPT. इसका अपने को EMF ऑफ द सेल निकालना है. ठीक है. What is the formula for EMF of the cell? E of the cell is equals to E naught of the cell minus 0.0592 upon N log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactor. इसमें ना डेटा मिसिंग है. E naught of zinc लिखो. E naught of zinc इधर लिखो. E naught of zinc is equals to minus 0.76 and E naught of hydrogen ना हमेशा 0.00 वोल्ट रहता है.
तो वो कभी भी मेंशन नहीं करते, समझ गए? E नॉट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज 0। बाद में पढ़ेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन का हमेशा 0 होता है, ठीक है। अभी मुझे बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करना है? आई वांट प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, सो यू विल बी राइटिंग द सेल रिएक्शन। चलो शुरू हो जाओ। स्टार्ट राइटिंग द सेल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कैलकुलेट ई नॉट ऑफ द सेल। ये दो काम मुझे बताओगे तुम लोग। क्या? राइट ऑन द सेल रिएक्शन एंड आई वांट द आंसर फॉर ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट ऑफ द सेल का फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। चलो यू विल गेट 2 minutes फॉर दिस। 10:53 हो रहा है। 10:55 को आई वांट ऑल योर प्रोडक्ट्स एंड योर रिएक्टेंट्स एंड ऑल्सो आई वांट योर ई नॉट ऑफ द सेल। चलो अभी यहाँ पर देखो प्रेशर मेंशन किया ना, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। I hope everybody is writing. सेल रिएक्शन हो गया? करेक्ट। चलो मैं लिखती हूँ, चेक करो। रिडक्शन इसका हो जाएगा, सो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा, जिंक सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2 plus with the loss of 2 electrons। कैंसिल हो गया। 2H plus plus Zn solid gives you correct E naught of the cell is my plus 0.76 correct। ये हो गया H2 गैस प्लस Zn2 प्लस, ये आया सबका आंसर। चलो एंड E naught of the cell is 0.76। तो मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ठीक है। E of the cell is equals to 0.76 minus 0.0592 upon 2, ठीक है। log to the base 10। अभी यहाँ पे ना बच्चों मुझे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने 1.8 दिया है। 1 रहता तो मैं नहीं लिखती। इनटू Zn2 plus divided by, should I write down Zn solid? No, because it is pure, so we will be writing only concentration of H plus का square। इतना सबको समझा? say yes or no। so it will be 0.76 minus 0.0296, कितना 296 हो जाएगा ना। log to the base 10। प्रेशर इज 1.8। जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1.6 का स्क्वायर। चलो 16 का स्क्वायर कितना है? 16 का स्क्वायर कितना है? बोलो। 256 ना। तो ये कितना हो जाएगा अभी? इट इज 0.76 माइनस 0.0296 log to the base 10। उसको पहले मल्टीप्लाई कर देते। 18 टू सा कितना होता है? 36 ना। 18 टू सा
36 यस मिस 1 2, तो ये 0 पॉइंट, देखो ये बराबर है 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, यस मिस बराबर 0.36। चलो अभी आगे क्या लिखेंगे, इसको नीचे डिवाइडेड बाय ये इसका स्क्वायर होके 2.56 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर है ना, तो 2 के पहले पॉइंट लगाने का। एक मिनट रुको, जरा ब्लर हो गया, अरे बाबा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट इज 0.76 माइनस 0.0296 log टू द बेस 10, इसको भी 36 बनाओ। 36 बनाएंगे तो इंटू 10⁻² हो जाएगा। चलो ठीक है, 36 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2.56, बहुत बड़ा हो गया ना ये, कट सकता है क्या, कैंसिल हो सकता है ये। 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 9 जा 2 6 जा 0.6 हो जाएगा ना ये, नहीं 2 6 जा 0.64, फिर किसे जाएगा और किससे नहीं जाएगा ना। और क्या कर सकते हैं इसको, 9 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.64 आ गया। चलो ठीक है, इसको ऐसे ही कर देते सॉल्व। एक 0 और बढ़ाओ क्या इसको, मिस इसको अच्छा लॉग ठीक से है कर चलो, देते ना। हाँ लॉग से ही करने का है, इसका लॉग अप्लाई करने का है माइनस इसका लॉग, और ये पॉइंट में आ गया। नहीं करते क्या, ऐसे ही करते, छोड़ो ये मत करो। तो व्हाट यू डू नाउ, जस्ट मेक इट, रुको इधर लिखती हूँ वापस से, 0.76 माइनस 0.0296 log टू द बेस 10, 36 इंटू 10⁻² करो डिवाइडेड बाय 2.56। तो पहले ये कैसे हो जाएगा, 0.76 माइनस 0.0296, ये हो जाएगा log ऑफ 36 प्लस log ऑफ 10⁻², समझ रहे हैं, माइनस log ऑफ 2.56। समझा क्या बच्चों कैसे करना है, log ऑफ 36 प्लस log ऑफ 10⁻² माइनस log ऑफ 2.56। इतना सॉल्व करो, पहले लिख रहे हो इतना, पहले लिख लो यहाँ तक लिख लो, एंड देन वी विल सॉल्व। पेज टर्न करती हूँ मैं। ओके, अंडरस्टूड व्हाट आई डिड, समझा भी क्या, क्या हो गया, आज कोई ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहा, नींद में है क्या सब लोग। यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई डिड। Yes, ma'am. हाँ यस हाँ, तो पहले अभी यहाँ तक करो, फिर मैं पीछे पेज टर्न करती हूँ, फिर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले लिख लो इतना। आई होप यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। रिएक्शन तो लिखना आ गया अभी तुम लोग को।
यहाँ तक हो गया बच्चों? ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ चलो टर्न करो पेज, तुम लोग भी सॉल्व करो हाँ, और चेक करो बराबर कर रहे हैं कि नहीं अपन। So it is 0.76 minus 0.0296, क्या था उधर पे, वापस लिखती हूँ, log of 36 plus log of 10 raised to minus 2 minus log of 2.56। चलो पहले ये सॉल्व करते हैं। सो 1.36 का log देखो, 5563 5563, ये हो जाएगा -2 है ना, प्लस 25 में 6 का log देखो, 25 में 6 का log 4082 4082। चलो अब ये 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले। सो 2.0000 1.5563, तो ये हो जाएगा 1999, ये हो गया 7340 पॉइंट, मतलब ये हो गया -0.4437, ठीक है, प्लस 0.4082 ना, 4082। मैम वो बीच में नेगेटिव आएगा ना? ओ सॉरी नेगेटिव है, सॉरी हाँ बराबर, करेक्ट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करूँ ना कि ऐड करूँ? ये माइनस ऐड इधर से होगा भी मैं। जाके चेंज जाएगा। चलो ऐड करते हैं, 0.4082, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है सब में, देखते हैं। 9 11 1 5 8, तो मेरा आंसर क्या आ गया अभी, 0.76 माइनस मीन्स ये तो माइनस 0.296, हाँ इंटू 1.5563 होगा ना क्या रे, ये, मिस वो ऊपर 4437 कैसे होगा मिस? माइनस किया ना 2 में से, log ऑफ 10 raised to -2 भी था ना, ये देखो इसका log है, ठीक है, फिर ये 10 raised to -2 का log भी तो निकालेंगे, ये -2 आया, तो पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर आएगा, फिर ये वाला इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझा हाँ मिस। यश? अब ये कितना आया, -0.8519। रुको पहले मैं इसको कैलसी पे चेक करती हूँ आ रहा है क्या, नहीं तो अपना पोपट हो जाएगा, 1 मिनट रुको। 0.0296 इंटू 0.8519, 0.0296 इंटू 0. क्या था बोलो नंबर, 85 नंबर क्या था, 8519, 0.02521 plus 0.76। लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। हाँ आया बराबर है, हम लोग सही कर रहे थे, वी आर राइट, चलो बराबर है। अभी ये क्या हो जाएगा इधर, 0.76 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0296 इंटू 0.8519। देखो कितनी बारीक चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये भूल गए लिखना तो सब रॉन्ग हो जाएगा, माइनस करना। अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, लॉग से करो चाहिए तो इसको, करेक्ट दिवेश, परफेक्ट आंसर आ गया, 296 इंटू 8.519 इंटू 10 रेज टू 1 2 3 4 और एक शिफ्ट किया मतलब 5। इसका लॉग एंड लॉग कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है, और इसको ऐड करो। वेरी गुड कोशिश, परफेक्ट आंसर। कैसे किया, लॉग से किया नीचे वाला के मल्टीप्लाई किया इसको? मल्टीप्लाई किया मैम। ओके मल्टीप्लाई कभी कभार फास्ट हो जाता है ना,
ये वाले केस में मल्टीप्लाई ज्यादा परवड़ता है। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, बराबर आंसर आ गया, करेक्ट है, परफेक्ट आंसर। मतलब देखो ये चीज ध्यान में रखना एग्जाम में, लेकिन जब भी लॉग फॉर्मूला में रहता है ना, तभी 10 वाले को भी लॉग अप्लाई करने का, इवन दो यू आर शिफ्टिंग इट। और जब हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं तभी 10 वाला पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं, लास्ट में हम लोग देखते हैं उसको। आया समझ में सबको बच्चों? सबका आंसर आ गया? सॉल्व करो जल्दी जल्दी। देखो कभी स्टार्ट किया था ये सम सॉल्व करना? कितना मिनट हो गया देखो, 10:53 को स्टार्ट किया था, 15 मिनट हो गया। मिस वो 10⁻⁵ आएगा ना वहाँ पर? हाँ 10⁻⁻, अगर लॉग से करेगा तो 10⁻⁵ आएगा, बराबर। चलो करो फास्ट जरा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट प्रॉपर्ली। मैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ले रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अभी एक और करेंगे क्रोमियम वाला। इन लोगों ने डेल्टा जी वगैरह का न्यूमेरिकल ही नहीं दिया, कैसे है? अजीब से खत्म हो गया न्यूमेरिकल, एक ही बचा है। देना चाहिए डेल्टा जी नॉट वाला सब देना चाहिए था, दिया ही नहीं है। आया सबका आंसर? यस, संचिता, आर्यन, हेली, प्रियंका, सृष्टि, श्रुति, श्रुतिका, तन्वी, सिद्धू, करेक्ट है श्रुति, बराबर। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? यू शुड रिप्लाई हाँ बच्चों, क्योंकि मुझे फिर समझेगा नहीं हो गया नहीं हो गया, फिर मैंने आगे का सम ले लिया, आपका छूट जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। डन एवरीबॉडी? आंसर क्या है श्रुतिका जादव? व्हाट इज द आंसर? करेक्ट है साक्षी, बराबर है। श्रुतिका जादव आपका आंसर पोस्ट करो। प्रियंका रॉन्ग हो गया तुम्हारा आंसर, तुमने एडिशन शायद गलत किया है, देखो अच्छे से चेक करो। करेक्ट है कन्हैया, प्रगति इज ऑल्सो करेक्ट, बराबर है। यश रॉन्ग हो गया, एकदम ही गलत आंसर निकला, चेक करो। प्रियंका तुम्हारा एडिशन चेक करो, एक ही नंबर गलत है सिर्फ, बाकी सब सही है। 9 जहाँ पे लिखा है ना वो चेक करो। हाँ करेक्ट, करेक्ट करेक्ट है श्रुति, यू आर राइट। श्रुति आम्बरे इज करेक्ट। श्रुतिका ने पोस्ट नहीं किया आंसर, आई एम वेटिंग। श्रुतिका जादव, तन्वी ने क्यों लेफ्ट कर दिया? क्वेश्चन पूछा इसके लिए, सही है। जो लोग ये सब लेक्चर छोड़, यस हेली करेक्ट। जीरो 0.785 इतना एग्जैक्ट आंसर आया तुमको श्रुतिका? आगे क्या नंबर है उसके? इतना एग्जैक्ट आंसर टेक्स्ट बुक जितना आएगा ही नहीं। टेक्स्ट बुक में से कॉपी करके मत बताओ मुझे, डोंट एक्ट स्मार्ट। हाँ, जो कि तुम लोग दूर दूर तक नहीं हो। करेक्ट, नाउ इट इज करेक्ट। चलो आगे बढ़े, हो गया ना सबका? अभी नेक्स्ट सम तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। आई विल गिव यू 10 minutes टू सॉल्व दिस। 10 minutes भी काफी हो गया, बट स्टिल आई विल गिव यू। चलो लिखो, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल मिस क्या एट था इसका 20। आंसर? इसका आंसर था 0.7852 वोल्ट। कुछ लोगों को 788 आया, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा किधर रॉन्ग हो गया यश, चेक करो।
बहुत घाई करता है यश, इसलिए गड़बड़ होता है तुम्हारा। आराम से किया करो। आगे बढ़े, नेक्स्ट सम। मिस वो लॉग एंटीलॉग में थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, वापस चेक करो बाद में। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, ये सिक्स्थ वन है, फोर्थ का सिक्स्थ वन। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेल ये रहा, 0.08 मोलार Cr3 प्लस 0.1 मोलार Cr सॉलिड, और अपने को दिया हुआ है ई नॉट ऑफ जिंक माइनस 0.76 वोल्ट, ई नॉट ऑफ क्रोमियम माइनस 0.74 वोल्ट। चलो शुरू हो जाओ। आपको निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल। क्वेश्चन लिख के हो गया सबका? यस और नो? Yes, ma'am. चलो, यू विल गेट 10 मिनट्स। इट इज 11:14। 11:22 को हम लोग डिस्कस, सॉरी 11:24 को विल डिस्कस। चलो फटाफट सॉल्व करो। सेल रिएक्शन लिखो, यूनिट ऑफ द सेल निकालो, लॉग निकालो एंड टेक आउट द आंसर। आ रहा है ना बच्चों सबको? कहीं पे कुछ अटक गए तो प्लीज आस्क। यू Yes, कैन ma'am. अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क प्लीज। हाँ, डोंट फील ऐसे बैड और शाय, यू कैन आस्क।
मिस वो लॉग का कैसे आएगा बताओ ना, वो कंफ्यूजन है तो। कौन सा लॉग वाला? पहले इसका ये बोलो। E of the cell is equals to E naught कितना आया? 0.02 वोल्ट। 0.02 वोल्ट। अच्छा, ये है क्या? पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में आया? नेगेटिव। नेगेटिव है। यस मैम। ओके, माइनस। नहीं मैम, माइनस पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जल्दी बताओ। पॉजिटिव है मैम। पॉजिटिव है, ओके। 0.02 सॉरी 0.0592 अपॉन n कितना आया? 6 आया रहेगा। हाँ मैम। हाँ, ओके। log to the base 10 बोलो, ऊपर वाला बोलो, क्या क्या आया? Zn2 प्लस है ना, डिवाइडेड बाय CR3 प्लस Zn2 प्लस रेस्ट टू कितना है? 3 3। 2। रेस्ट टू बराबर लिखा? यस मैम। बराबर लिखा ना? ओके चलो। 0.02 माइनस डिवाइड होएगा ये 6 1 जा 0.0 6 9 जा ना 5 बचा, वापस से 6 8 जा 4 बच गया 6 जा। चलो ठीक है, इतना रिकरिंग हो जाएगा। तो ये हो गया 0.09866। अब देखो log टू द बेस 10, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.08 का क्यूब। ओ गॉड, 0.08 का क्यूब डिवाइडेड बाय क्रोमियम इज 0.1 का स्क्वायर। चलो 0.02 माइनस 0.09866 log टू द बेस 10, इसके क्यूब का आंसर कितना आया? 8 8 जा 64, 64 8 जा 0.08 5 0.000512 ना, 3 बार 0 आएगा, हो जाएगा 0.000512 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 इंटू 10 रेस टू माइनस 1 मतलब 10 रेस टू माइनस 2 बराबर है कि नहीं? हाँ, 0.1 इंटू 0.1 ना, तो 1 इंटू 10 रेस टू माइनस 1 1 इंटू 10 रेस टू माइनस 1 मतलब -2। ये समझा इतना? चलो अभी आगे देखते हैं अपना। 0.02 माइनस 0.09866। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इसको, नहीं 0.0 आएगा ना, 0 आएगा। रुको चेक करती हूँ। हाँ 0.00 आएगा, बराबर बोला है प्रियंका, थैंक यू। This is 0.00, correct, she is correct. Then log to the base 10, अभी ये 512 के आगे करेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 6 512 into 10 raised to minus 6 divided by 10 raised to minus 2। ठीक है, तो ये हो गया 0.02 minus 0.009866 log to the base 10 512 into 10 raised to minus 4। समझा कैसे आया -4? बच्चों -2 ऊपर जाएगा, हाँ मैम। +2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी करो, अभी आ जाएगा आंसर। -0.009866, ये क्या हो जाएगा? log ऑफ 512 प्लस log ऑफ 10 raised to minus 4। अभी करो, 0.02 minus 0.009866 log ऑफ 512 कितना है? 51 में 2, बोलो। 7092।
एक मिनट, इसमें कुछ तो डाला है। आंसर इज, नहीं करना यार, थोड़ा गड़बड़ है बच्चा, रुक जाओ। हाँ बोलो कितना आंसर है 51 का 2? 7092। 7092, और ये हो जाएगा -4, ठीक है। मिस तो 93। 4.0000, ठीक है। 2.7093 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3999, ये 10, 7092, और ये हो जाएगा 3, मतलब 0.02 माइनस 0.009866, हाँ, इंटू माइनस 3.2907। अब करो 0.02 माइनस माइनस प्लस 0.009866 इंटू 3.2907। नाउ यू सॉल्व। लॉग से करना है क्या ये पार्ट? तो लॉग से करो, शिफ्ट कर दो पॉइंट। 9866, 1 2 3 4 5 6 इंटू 29, सॉरी 3.2907 के 10⁻² -6। कशिश को एकदम बराबर आंसर आया है। क्या हुआ कशिश? कौन सा कैलकुलेशन रॉन्ग है कन्हैया? अरे हाँ रे, सॉरी सॉरी, 1 पॉइंट आएगा बराबर। हाँ सॉरी सॉरी, ये 1 पॉइंट है, करेक्ट करेक्ट। यही बोल रहा था क्या कन्हैया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बराबर। 1 पॉइंट आएगा, मैंने ना इसको ये कंसिडर किया, 4 ही कंसिडर किया, बराबर बराबर। चलो अभी करो ये, लॉग से करो, लॉग से करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, मेरे को लगता है लॉग से करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। देखो 11:30 बज गया। मैंने बोला था ना एक सम करने को आधा घंटा लगता है, फिर भी तुम लोग को छोटे सम्स है। अभी देखो क्या आंसर आता है। एकदम परफेक्ट आंसर आया प्रगति, वेरी गुड, एकदम सही है। मैम हाँ बोलिए। मैम ये 1.2907 के बाद मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 है ना? हाँ हाँ, यस यस, एक मिनट रुको, यस यस, क्योंकि मैंने सब पॉइंट शिफ्ट किया, देखो 1 2 3 4 5 6, और इसको ऐसे ही रखा, 10⁻⁻6। यस कशिश, परफेक्ट आंसर। चलो व्हाट अदर्स आर डूइंग, फटाफट करो बच्चों।
नहीं प्रियंका, गलत है आंसर तुम्हारा, चेक करो, किधर मिस्टेक हो गया होगा छोटा सा। हाँ दिवेश, करेक्ट, करेक्ट आंसर, वोल्ट। देखो बच्चों, एकदम आराम से करो, घाई मत मचाओ, धीरे धीरे एक एक टर्म को देखो, एक एक नंबर को देखो, प्रॉपर्ली ऐड करो, अच्छे से लिखो। जो लोग अपने बुक में अच्छे से लिखते हैं ना, उनका सम कभी रॉन्ग नहीं होता है। जो लोग आड़ा टेढ़ा कैसे भी लिखते हैं ना, वो रॉन्ग होता ही है। ये श्रुति बराबर आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है। Haley, wrong. You've mistaken somewhere. Please check it once again. यश into 10 कुछ रहेगा ना? हाँ बराबर है यश, करेक्ट। श्रुति आम्रे, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया बच्चा, आपका आंसर रॉन्ग है, चेक करो। कन्हैया, रॉन्ग आंसर। मिस अब भी पूरा ध्यान से किया, लास्ट टाइम श्रुति रॉन्ग आया था। जादव बराबर है, हाँ वेरी गुड, बराबर आया ना अभी आंसर तुम्हारा यश? हाँ अभी यश का आंसर बराबर है। वही मैं बोलती हूँ, आराम से करने का, एकदम धीरे धीरे। सम्स में कभी गाई नहीं करने का, एक वर्ड रॉन्ग हो जाएगा ना तो पूरा गड़बड़ हो जाता है, फिर अपना कॉन्फिडेंस चला जाता है। कन्हैया रॉन्ग है तुम्हारा आंसर बेटा, और श्रुतिका जादव करेक्ट आंसर, वेरी गुड। एक जीरो गायब है तुम्हारा, लेकिन चेक करो, इट इज 0.0। हाँ करेक्ट, बराबर है, वेरी गुड। जिनका रॉन्ग हो गया ठीक करो, यश का, सॉरी कन्हैया का, हेली का, और किसका रॉन्ग हो गया, प्रियंका, ये 3-4 लोगों का रॉन्ग हो गया है, प्लीज चेक करो बच्चों। इसका मल्टीप्लिकेशन का ये वाला आंसर बोलो रे बच्चों, सो दैट दे विल गेट द हेल्प। 0.02 प्लस, इसका आंसर क्या आया मल्टीप्लाई करके, लॉग और एंटी लॉग या फिर मल्टीप्लाई, वॉट एवर। 0.00727 ही आया ना? कौन सा बोल रहे हो श्रुति आमरे? आप फाइनल आंसर बता रहे हो क्या मल्टीप्लिकेशन का? अच्छा मेन आंसर रॉन्ग है तुम्हारा, इसका बोलो, इसका 0.0127। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए, तो 0.0127। हाँ ठीक है, बराबर, ओके दिवेश। तो ये हो जाएगा 0.022723 ये आंसर आएगा, फाइनल आंसर। जिनका रॉन्ग हो गया ना, वो इधर इधर रॉन्ग हुआ रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए तुम लोग का आंसर ऐसे विचित्र सा आ रहा है, विचित्र सा। देखो मैंने मैक्सिमम सब न्यूमेरिकल्स ले लिया, एकदम जितना हुआ है ऑलमोस्ट सब लिया है मैंने, ऑलमोस्ट क्या एक्चुअली सभी लिए। यस हेली, नाउ इट इज परफेक्ट आंसर। मिस अभी ये चैप्टर का कितना बचा है? अरे बहुत बचा है, बहुत बड़ा चैप्टर है। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 108, और चैप्टर है तुम लोगों का, रुको बताती हूँ, 116 तक है, और बड़े बड़े टॉपिक्स है, बहुत टाइम लगेगा इसको सिखाने में। और एक हफ्ता तो पकड़ के चलो, मॉर्निंग इवनिंग अगर गए भी ना, तो भी एक हफ्ता, उससे भी ज्यादा भी लग सकता है, यू कैन नॉट से एनीथिंग।
चलो शुड वी प्रोसीड नाउ? अभी Sure, थोड़ा ma'am. सा थ्योरी, हाँ अभी थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं. ओके चलो 1 मिनट दे दो जरा, मैं बुक का पेजेस चेंज कर लेती हूँ. खत्म हो गया मेरा बुक भी लिख लिख के. एक मिनट बच्चों, दूसरा बुक लाती हूँ. प्लीज गिव मी 1 मिनट. तो तुम लोग पानी वानी पी लो. 1 मिनट रुक जाओ, मैं आती हूँ, बुक लेके आती हूँ. चलो आ गए सब लोग. Now next topic which we will start is reference electrodes. ठीक है, we will start now. नेक्स्ट अभी कुछ लिखना नहीं है, तो बुक बुक बंद करके बैठोगे तो भी कोई इशू नहीं है. पेन वेन रख दिया तो भी चलेगा. अभी कुछ लिखना नहीं है, बाद में लिखेंगे. नेक्स्ट we'll start with the reference electrodes. ठीक है. Now, why this reference electrode came into the picture? Because whenever we are saying a reaction is a redox reaction, correct? Means you can say that reduction and oxidation takes place simultaneously. तो जब आप दो सेल लेते हो, ठीक है, when I am taking 2 cell, I am inserting the salt bridge into this, so the reaction takes place simultaneously. ऐसा तो होता नहीं है कि इस सेल में रिएक्शन हो रहा है, इस सेल में रिएक्शन नहीं हो रहा है. Reaction takes place simultaneously. मतलब I cannot find out the potential of a single cell. मतलब मुझे अगर सेल निकालना है तो मुझे सेल पोटेंशियल ही निकालना पड़ेगा. बराबर है ना? I cannot take out the single potential, means potential of only cathode or potential of only anode. आ रही है बात समझ में? तो scientists were very worried and they wanted to do some invention so that you can find out the potential of a single cell. मतलब मेरे पास 2 सेल है, सेल ए और सेल बी, हाफ सेल है ना दोनों. तो या तो मुझे अभी मुझे जब सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा तो मैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों लिखूंगी. सेल ईएमएफ निकालूंगी, तभी भी मैंने दोनों का ऐड करके ही आंसर लिखा है. मुझे कभी ऐसे नहीं मिलता कि ईएमएफ ऑफ द एनोड और ईएमएफ ऑफ द कैथोड, ऐसे नहीं मिलता. बट साइंटिस्ट वांटेड टू फाइंड आउट दैट. ठीक है. सो व्हाट दे हैव सेड, लेट अस मेक सम रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स. व्हाट दे हैव सेड, let us make some reference electrode, and they have made 2 reference electrode. एक था primary reference electrode और दूसरा था secondary reference electrode. Primary reference electrode को क्या बोला उन्होंने पता है? They said let us consider the potential of any one of the electrode or any one of the cell as 0. Means the potential of that electrode is arbitrarily, means assuming, is taken as equal to 0, and that time it is called as. अभी देखो मैंने क्या किया, ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है, बराबर. तो आई एम राइटिंग ओवर हियर E naught of the cell is equals to E naught of cathode minus E naught of anode. All are agreed? अगर मैंने एनोड को 0 बना दिया तो मेरा E naught of the cell क्या आएगा? E naught of cathode आएगा ना. मतलब कैन आई गेट द वैल्यू फॉर E naught of cathode? सिंगल सेल का मिल गया ना मुझे, तो E naught of cell रहेगा, वही मेरा कैथोड रहेगा. So I have taken the electrode, potential of that electrode arbitrarily equal to 0. अभी मैं कैथोड को 0 बनाती हूँ तो मेरा E naught of the cell जो भी आएगा that will be nothing but E naught of the anode. आ रही है बात समझ में? What I am trying to say? Yes or no? हेलो, फिर से बता थोड़ा. हाँ हाँ फिर से बताती हूँ. यस यस, थोड़ा क्यों, पूरा ही बताती हूँ. See what I said, we are using reference electrode. What is the use of reference electrode? Whenever I am doing a cell reaction, in this cell reaction, oxidation half reaction and reduction half reaction takes place simultaneously. So I can write on overall cell reaction. Similarly,
आई हैव टू राइट डाउन ओवर हियर ओवरऑल सेल पोटेंशियल। मैं कभी भी कैथोड का पोटेंशियल या एनोड का पोटेंशियल अकेले फाइंड आउट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो हमेशा एडिशन होता है, दोनों साथ में होता है। ये जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने इलेक्ट्रॉन से लेता है, ये जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने इलेक्ट्रॉन से देगा, तो ये हमेशा साथ में होता है। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड if it is in the connected form. बराबर है? So what they have said, scientists said, let us consider the potential of any one of these electrode as arbitrarily equal to zero. Arbitrarily मतलब assume कर लिया कि इन दोनों में से कोई एक तो जीरो है। ठीक है, अब देखो E naught of the cell is equals to E naught of the cathode minus E naught of the anode. मैंने एनोड को जीरो कंसिडर कर दिया, तो जो E naught of the cell आएगा वही मेरा E naught of the cathode आएगा। मतलब मैंने E naught of the cathode फाइंड आउट किया कि नहीं आधा सेल का? बोलो यस और नो। नहीं समझा? हेलो, अरे समझा बोलो मैम। तो समझा ना समझा मैंने मैम, क्या बोला? समझा। हाँ हाँ, अभी मैंने क्या किया, इस कैथोड को जीरो ले लिया अभी। चलो, E naught of cathode is zero now, तो E naught of the cell is equals to minus E naught of the anode। मतलब मेरा जो आंसर E naught of the cell आएगा वही मेरा एनोड का होगा। तो मैंने क्या अकेला E naught of the cell फाइंड आउट किया? यस। समझा? मतलब इन दोनों में से किसी एक को जीरो बना देंगे तो मैं किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, यस वी विल कंसिडर हाइड्रोजन जिसका पोटेंशियल हम जीरो रख देंगे। तो किसी भी सेल के साथ हाइड्रोजन को ज्वाइन कर दो। अभी मेरा एग्जांपल देखो, हाँ मैं बताती हूँ। आई हैव दिस इलेक्ट्रोड, सपोज दिस इज माय जिंक, और यहाँ पर मैंने ले लिया अपना हाइड्रोजन वाला। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही, समझ आ गया? तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, E naught of the cell is equals to, ये देखो एक सम किया था मैंने, बताया था। E naught of the cell is equals to E naught of cathode मतलब हाइड्रोजन माइनस E naught of जिंक। अब हाइड्रोजन तो जीरो है, तो मेरा क्या आ गया, E naught of the zinc is equals to E naught of the cell। तो मैंने क्या फाइंड आउट किया, E naught of the zinc is nothing but minus of E naught of the cell। तो मैंने आधा का पता किया ना। आई बात समझ में? अब मैं यस उल्टा मैम। कर देती हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देती हूँ और यहाँ पर दूसरा सपोज निकल लगा देती हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा ये। E naught of the cell is equals to E naught of nickel minus E naught of hydrogen। अभी हाइड्रोजन का जीरो था, मतलब E naught of the cell is equals to E naught of the nickel बराबर। तो मैंने क्या फाइंड आउट किया, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। व्हाट इज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड? द इलेक्ट्रोड whose potential is arbitrarily taken as zero is called as primary reference electrode। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने किसको कंसिडर किया है, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करने में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि अपने पास थोड़ा टाइम कम है। ठीक है, सो इसको यूज करने में बहुत ही डिफिकल्टीज आती है। क्या डिफिकल्टीज आती है? आपको प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस चाहिए होता है, फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता रहता है, इट इज अ गैस, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो सब बहुत गड़बड़ होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, एक काम करते हैं, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जब बनाया तो उसका नाम रखा गया सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैरामेल मत लिख देना, ठीक है, इट इज कैलोमेल, कैलोमेल, सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड, उसको बोलते हैं SCE, सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड बराबर। उन लोगों ने क्या बोला, इसका पोटेंशियल है ना फिक्स्ड कर देते हैं कि E naught of SCE is 0.242 वोल्ट। कितना होता है SCE का? 0.242 वोल्ट, ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जब हम सेकेंडरी रेफरेंस, इसमें दिया भी है कि नहीं तुम लोग को? हाँ, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल दे दिया डायरेक्टली, सेकेंडरी रेफरेंस उड़ा दिया तुम लोग के सिलेबस में से, क्या बेकार लोग हैं। ठीक है, इसका पोटेंशियल होता है 0.242 वोल्ट। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगी, आई विल टेक माई इलेक्ट्रोड, कौन सा भी, और ये मेरा अभी सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, सपोज SCE, और मुझे पता करना है अभी सपोज कॉपर का। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज आ गया। E naught of the cell is equals to
E naught of SCE माइनस E naught of कॉपर. E naught of the cell तो मुझे एक्सपेरिमेंट से मिलेगा. सपोज X आया, ठीक है. SC 0.242 माइनस E naught of कॉपर. मुझे मिल सकता है E naught of कॉपर. यस. क्या करूंगी मैं, इसको इधर लेके जाओ, X को इधर लेके आओ, ऐड कर दो. E naught of कॉपर मिलेगा कि नहीं? आ रही है बात समझ में? So the electrode whose potential is already known is called as secondary reference electrode. अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ. ये मेरा SCE है और ये मेरा सपोज कैडमियम है. चलो कैडमियम ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगी? E naught of the cell is equals to E naught of cadmium minus E naught of SCE. SCE का वैल्यू पता है ना मुझे. So E naught of the cell is equals to E naught of cadmium minus 0.242. तो मेरे को सेल पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट से मिलेगा. इन दोनों को मैं क्या करूंगी? ऐड करूंगी, तो आई विल गेट E naught of cadmium. आया समझ में? So the electrode whose potential is already known is called as secondary reference electrode. इतना समझा सबको? पहले इतना बोलो. What are reference electrodes? अगर मैंने ऐसे बोला कि what are reference electrodes, so I will say reference electrodes are those in which whose potential is either arbitrarily taken as zero or is exactly known. Definition में तो दोनों का नाम लिखेंगे ना, समझा? The electrodes whose potential is either arbitrarily taken as zero or is exactly known are called as reference electrodes. There are two types of reference electrode. First is called as primary reference electrode. Second one is called as secondary reference electrode. What is primary reference electrode? The electrode whose potential is arbitrarily taken as zero is called as primary reference electrode. What is secondary reference electrode? The electrode whose potential is exactly known. काम आसान हो गया ना मेरा. अगर जीरो ले लूंगी तो एक तो पूरा जीरो बन गया, तो जो सेल पोटेंशियल आएगा वो इसके जितना होएगा, ठीक है. और अगर मैंने इसको एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिया तो आई कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन. मतलब मेरा मुद्दा क्या था ओवरऑल इसमें? मुझे ये करना था कि मुझे, साइंटिस्ट लोगों को बहुत कीड़ा रहता है, चुपचाप से सेल पोटेंशियल नहीं निकाल के बैठते. उनको तो था कि नहीं, हर एक इलेक्ट्रोड का भी पता होना चाहिए, ठीक है. तो इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड. इज इट क्लियर बच्चों? आई होप इट इज वेरी क्लियर. मिस मतलब हम लोग जिसका जीरो लेते हैं वो प्राइमरी हाँ. रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है ना? यस यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. और वो हाइड्रोजन ही रहता है. अभी देखो एक सम किया था और मैंने बोला उसका डायरेक्टली जीरो लिख दिया. तो क्या करते पता है, हाँ सम मिस. देंगे और उसके साथ हाइड्रोजन लगाएंगे ना, तो एक ही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देते हैं और बच्चे लोग कंफ्यूज जाते हैं. अरे ई नॉट ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे? अरे उसमें करना ही कुछ नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो वैसे ही जीरो रहता है, तो उसको जीरो कंसिडर करके सम सॉल्व कर देने का. आया समझ में? लास्ट ईयर तुम लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बहुत डिटेल में था. इस साल सिर्फ प्राइमरी डिटेल में है, तो वो हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी. हेडिंग लिखो अभी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स. राइट ऑन द हेडिंग प्लीज, रेफरेंस इलेक्ट्रोड. किसी को कुछ पूछना है क्या बच्चों? नहीं समझा होगा तो प्लीज पूछो. इज इट वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी? गिव मी अ क्विक yes into the chat box if it is very clear. रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों चाहिए and what are primary and secondary reference electrodes? Only 2 3 yes I got. Okay okay, चलो ठीक है, वेरी गुड. आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी. चलो ठीक है, अभी लिखो बच्चों हेडिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड. बोलो डेफिनेशन. द इलेक्ट्रोड whose potential is either arbitrarily मतलब assuming, arbitrarily taken as zero. The electrode whose potential is either arbitrarily taken as zero or is exactly known
is called as reference electrode. Is called as reference electrode. उसके बाद ऐसे बनाओ, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, चार्ट बनाओ ऐसा, ट्री डायग्राम, सॉरी, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बोलू प्राइमरी के नीचे लिखो, the electrode whose potential is arbitrarily taken as 0 is called as primary reference electrode. For example, standard hydrogen electrode, मतलब SHE. The electrode whose potential is arbitrarily taken as 0, the electrode whose potential is arbitrarily taken as 0 is called as primary reference electrode. For example, standard hydrogen electrode SHE, यही है, तो आप ऐसे लिख दो, E0 of SHE or E0 of hydrogen is equals to 0.00 volt. फिक्स्ड रहता है, 0 ही रहता है हाइड्रोजन। डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मैम द इलेक्ट्रोड, हाँ मैम ये एग्जांपल का फिर से बोलिए ना। एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, ये देखो लिखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। नीचे क्या लिखोगे, E0 ऑफ SHE और E0 ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट। मतलब ये 0 ही रहेगा हमेशा, जहाँ पे भी हाइड्रोजन दिखेगा खुश हो जाने का, क्योंकि वो 0 रहता है और ज्यादा टेंशन नहीं देता। हाँ मैम, थैंक यू। वेलकम। चलो नेक्स्ट, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। Yes, in every aspect hydrogen is 0 volt, Divesh. Okay, because it is considered as okay, it is 0, कुछ होगा भी potential उसका तो भी उसको 0 ही consider कर लिया। Okay, ma'am. Okay. Secondary reference electrode, the electrode whose potential is exactly known. The electrode whose potential is exactly known is called as secondary reference electrode. The electrode whose potential is exactly known is called as secondary reference electrode. For example, saturated calomel electrode. अरे कितना सिंपल तो है। The electrode whose potential is exactly known is called as secondary reference electrode. The electrode whose potential is exactly known is called as secondary reference electrode. Example, saturated calomel electrode SCE, saturated calomel electrode। उसके नीचे लिखो, E0 of SCE is 0.242 volt, 0.242 volt। ओके, अभी खाली नेक्स्ट हेडिंग लिख के रखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। You have to start with standard hydrogen electrode, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फिर वो कैसे दिखता है, क्या क्या यूज करते हैं उसको बनाने के लिए, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, एवरीथिंग वी विल स्टडी टुमारो। किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर में? आई होप यू ऑल आर फाइन विद द न्यूमेरिकल्स। अभी मुझे लगता है ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, अभी 1-2 सम रहेगा तो रहेगा।
अभी हो गया, न्यूमेरिकल का मैक्सिमम पार्ट हो गया. व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर, इसको 3 पार्ट में पढ़ना. 3 पार्ट में कैसे पढ़ोगे? पहले पार्ट को डिवाइड करना अप टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां पर आपका फेराडेज लॉ खत्म होता है ना, फेराडेज लॉ तक पढ़ना पहला पार्ट. ठीक है. सेकेंड पार्ट आप गैल्वेनिक सेल पढ़ना, जो मैंने आज पढ़ाया सम्स तक. आज क्या न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट वहां तक. और तीसरा पार्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड से एंड तक पढ़ना. एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ोगे पागल हो जाओगे, कुछ नहीं आएगा, एकदम पागल हो जाओगे. तो 2 दिन में एक पार्ट पढ़ना, 2 दिन में एक पार्ट पढ़ना, 2 दिन में एक पार्ट पढ़ना. समझा? तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा. ऐसे जो बड़े चैप्टर्स हैं वो कभी भी एक साथ नहीं पढ़ने का, उसको डिवाइड कर देने का. तुम्हारे हिसाब से 4-5 इसमें डिवाइड कर दो, और चाहिए तो और भी इसमें डिवाइड कर दो. मैं तो बच्चों को टेस्ट भी ऐसे ही देती हूँ. पहला पार्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल अप टू फैराडेज लॉ, गैल्वेनिक सेल जो अभी आज हम लोगों ने खत्म किया पूरा. किधर तक? अपना ये क्या था, नर्न्स इक्वेशन और डेल्टा जी वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक. दिस इज अप टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और रेफरेंस इलेक्ट्रोड से पूरा थ्योरी है, तो वो पढ़ सकते हो एक साथ ही. ठीक है. तो ऐसे पढ़ना, एक साथ पढ़ोगे ना तो पागल हो जाओगे. इवन थर्मोडायनेमिक्स तो डिवाइडेड इन द 2 पार्ट. जहां से आपका ये चालू होता है ना, एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन, उसके पहले वाला फर्स्ट पार्ट ले लेना, और एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन से सेकेंड पार्ट ले लेना. या फिर ऐसे करो, अप टू फर्स्ट लॉ एंड देन सेकेंड लॉ, ऐसे डिवाइड कर दो. तो 2 पार्ट में पढ़ो. इवन सोल्यूशन को 2 पार्ट में पढ़ो. सोल्यूशन का एक पार्ट, कॉलिगेटिव का एक पार्ट. कॉलिगेटिव का भी चाहिए तो 2 पार्ट में डिवाइड करो. पहले फ्रीजिंग और इसका क्या बोलते हैं उसका नाम, बॉइलिंग पॉइंट एक बार पढ़ो, फिर ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ऐसे पढ़ो. तो धीरे धीरे करके पढ़ लो, हो जाएगा तुम लोग का. पता है, एक साथ मत लेके बैठना कि आज मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, पागल हो जाओगे, कुछ नहीं आएगा. ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस मैम. ठीक है, चलो अभी एंड करते हैं लेक्चर. 2 ही मिनट बचा है. वी विल मीट टुमारो. आज इवनिंग में लेक्चर नहीं है, कल रहेगा मॉर्निंग में 10:30. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, बाय बाय, एंजॉय योर डे. बाय बाय कशिश, बाय प्रगति, बाय सृष्टि.